back to my channel A to Z grammar classes. So friends, in this class we are going to discuss about abstract noun. What is abstract noun? That is called भाववाचक संज्ञा in Hindi. हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा. This is the third part of noun because we have already discussed about proper and common noun in my previous video. So what is the definitions of abstract noun? Abstract noun क्या होता है? Abstract noun is the name given to ideas, feelings, state, quality and actions. It means abstract noun expresses ideas, feelings, state, quality and action. What does abstract noun express? Abstract noun किसके बारे में वर्णन करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, किसको करता है? स्टेट किसी भी अवस्था को, किसी भी क्वालिटी को यानी किसी विशेषताओं को, एक्शंस कोई भी काम हो गए, फीलिंग्स विचार हो गए, आइडियाज इसको एक्सप्लेन करता है ये. एग्जांपल्स अराइवल, ब्यूटी, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस. ब्यूटी, अराइवल इज एन एक्शन, ब्यूटी is a quality, oldness and childhood are states and happiness is feelings. I repeat, abstract noun is the name given to ideas, feeling, state, quality and action. Example arrival, beauty, oldness, childhood, happiness. Rules: it acts as a contrast to concrete noun. It can neither seen nor touched. It means इसको ना देखा जा सकता है और ना छुआ सकता है. If we talk about proper and common noun, they both can be seen or touched. And this is the third rule. It is formed from common noun, adjective and verb. It means ये किस से बनता है? Common noun से बनेगा, adjective से बनेगा and verb से बनेगा. Because I have already told you it expresses quality and action. That's why it is formed from adjective and verbs. ये adjective से भी बनता है और verb से भी बनता है. इसी वजह से ये किसी भी quality को और किसी भी action को describe करता है, क्योंकि ये adjective और verb दोनों से बनता है. Now if we talk about uses of abstract noun, the first use, like other nouns, दूसरे नाउन के जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अगर हम जैसे कि दूसरे नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, वैसा ही सेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, द वर्ड एंगर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एंगर is not a productive response to criticism. It means here anger is subject. Anger का मतलब होता है क्रोध. Okay, that is formed from angry and angry is a adjective. Angry is an adjective से बनता है anger. Angry का मतलब होता है गुस्से वाला और anger का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, कुछ भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर anger जो है वो as a subject यूज हुआ है. In next sentence, we must never show anger in difficult situation. हमें कठिन परिस्थितियों में कभी क्रोध नहीं दिखाना चाहिए. Here anger is used as object. यहाँ पर anger जो है वो object में यूज हुआ है. This is a direct object of word. Second use of abstract noun, capitalization of abstract noun. Capitalization of abstract noun. Abstract nouns are not capitalized when they occurs within a sentence. It means अगर abstract noun किसी भी sentence में use हुआ है, we should never write them with a capital letter. हमें उसको कभी भी capital letter से नहीं लिखना चाहिए like proper noun, because proper noun is only noun that can used with a capital letter in the middle ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी नाउन है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर कभी किसी के सेंटेंस के बीच में आता है तो वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं यूज होगा. इसीलिए मैंने रूल आपको बताया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैपिटलाइजेशन का क्या रूल होता है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता है व्हेन दे ऑक्योर्स विद इन अ सेंटेंस, जब भी ये किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं, जब ये किसी भी सेंटेंस में होते हैं या यूज होते हैं तो इनको कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है। एग्जांपल्स हैं, इसका एग्जांपल है गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। हियर लिबर्टी एंड डेथ बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन and they are used with a small letter. Death का D and liberty का L जो है ये किससे यूज हुए हैं, स्मॉल लेटर से। इट मीन्स कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर बीच में आता है सेंटेंस के तो उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा, लाइक प्रॉपर नाउन। एंड थर्ड यूजेस व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद अ प्रॉपर व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन replace when an abstract noun replace with a pronoun always use the gender neutral. It means जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन की पोजीशन पर, नाउन की जगह पर आने वाले, नाउन के प्लेस पर आने वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जाहिर सी बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी रिप्लेस पर कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, तो वहां पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इसके लिए रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्लेस विद अ प्रोनाउन, अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी भी प्रोनाउन से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह आपको प्रोनाउन यूज करना है, ऑलवेज यूज द जेंडर न्यूट्रल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जेंडर कौन सा होगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं इट। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं इट। इसका मतलब ये हुआ है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको इट प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाता है न्यूट्रल जेंडर में, और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। And here I am going to tell you formation of abstract noun. I mean to say कि किसी भी abstract noun को कैसे फॉर्म किया जाता है, किसी भी भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे बनाते हैं। This is a most common rule. ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन रूल है जो कि कॉमनली यूज होता है, और वो क्या है वो देख लीजिए। abstract noun are formed by adding suffix. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फॉर्म किया जाता है, सफिक्स को ऐड करके, और सफिक्स के बारे में वी ऑल नो सफिक्स आर ऐड इन द एंड ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में, एंड में ऐड किए जाते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं प्रत्यय। सफिक्स को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के आखिरी में यानी कि लास्ट में इसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल भी आपको देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स that should be add in the end of any word for forming of abstract noun. tion, sion, hhood, ness, hsibc, etc. So यहाँ पर आप examples को देख सकते हैं। How are abstract noun formed by adding suffix? Okay. For example, here is a word inform. That means सूचना देना, that is a verb, and we add tion suffix in the end of this word, inform plus tion, that makes a new word, that is information. ये एक नया शब्द बनाता है जिसको बोलते हैं information, इसको हिंदी में बोलते हैं जानकारी। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, inform का मतलब होता है जानकारी देना, ओके, और जो कि एक वर्ब है, क्रिया होती है, और इसमें अगर tion सफिक्स यानी कि हम लोग प्रत्यय का यूज कर देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, दैट मेक्स अ न्यू वर्ड, वो है इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जानकारी। तो जानकारी देने से क्या हुआ, जानकारी हो गया, सूचना, सूचित करना इन्फॉर्म होता है, सूचना होती है इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप देख सकते हो कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मीन्स होता है भ्रमित। sion अगर सफिक्स इसमें लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मीन्स होता है भ्रम, ओके। कंफ्यूज्ड मीन्स होता है भ्रमित। अगर sion सफिक्स इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है कंफ्यूजन, नया शब्द बनता है जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रम। The same rule follow in all the example.
Here is example of child. Child is a common noun. If we add suffix hood in the end of the word, that makes a new word, जो कि एक नया शब्द बनाता है, that is childhood. Childhood means बचपन, इसको हिंदी में बोलते हैं बचपन. Bright, bright is an adjective. If we add any suffix by the in the end of this word, that makes a new word, brightness. Brightness means चमकदार. Friend, that is a common noun, and shiv suffix is and in the end of this word, that makes a new word, एक नया शब्द बनाता है जिसको बोलते हैं फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप मींस होती है दोस्ती. ओके फ्रेंड्स, so here are rules forming of abstract noun. As I told you, abstract noun are formed from common noun, adjective and verb. And here I am going to tell you forming of abstract noun from common noun. Common noun से abstract noun कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. वो देखिए आप, boy, boyhood. boy से क्या बनता है? boyhood. friend से friendship, slab से slavery, thief से theft, neighbor से neighborhood, robber से robbery, democratic से democracy, child childhood, king kingship, captain से captaincy, beggar beggary, brother brotherhood, agent agency, author authorship, hero heroism, owner ownership, patriot patriotism, member membership, scholar scholarship, man manhood, national nation nationality. Okay, so here I have told you forming of abstract noun from common noun. So here are example of forming abstract noun from adjective. अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ abstract noun जो होता है वो adjective से कैसे बनेगा. adjective मतलब विशेषण से भाववाचक संज्ञा को बनाना. तो देख लीजिए यहाँ पर, there are lots of example. angry anger, weak weakness, poor poverty, deep depth, high height, sick sickness, brave bravery, silent silence, tired tiredness, thick thickness, wise wisdom, strong strength, hard hardness, bold boldness, intelligent intelligence, beauty beautiful. I'm sorry, यहाँ पर जो है अपोजिट हो गया, ये रिवर्स हो गया था. Beautiful is an adjective and beauty, beauty is an abstract noun. Good goodness, kind kindness, honest honesty, confused confusion, bright brightness, cruel cruelty, smooth smoothness and cowards cowardice. यहाँ इसका मतलब हुआ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा. यहाँ पर देखिए एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है? कोई गुस्सा हुआ व्यक्ति हो. एंगर मीन्स होता है क्रोध, मतलब क्रोधित. अगर मैं कहूं ही इज एंग्री मैन, वह क्रोधित व्यक्ति है, गुस्सा करने वाला है, तो एंगर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा. वीक से बनता है वीकनेस. पुअर पावर्टी, पुअर मीन्स होता है गरीब, पावर्टी मीन्स होती है गरीबी. डीप मीन्स गहरा, डेप्थ मीन्स होती है गहराई. इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है शक्तिशाली, और स्ट्रेंथ मीन्स होती है शक्ति. वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, और विजडम मीन्स होती है बुद्धिमानी. इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी वही सीन है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, और उससे बनता है इंटेलिजेंस, इसका मतलब है बुद्धिमानी. स्मूथ मीन्स मुलायम, इससे बनता है स्मूथनेस. ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, इससे बनती ईमानदारी, ऑनेस्टी. तो इस तरीके से एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग बना सकते हैं. ओके, सो हियर आर एग्जांपल ऑफ फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब. यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि वर्ब से यानी कि क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं. क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना. ओके, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना. फॉर्मिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब यानी कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना. एग्जांपल देखिए, अराइव, अराइवल, अराइव मीन्स होता है आना, अराइवल मीन्स होता है आगमन. नो मीन्स जानना, और नॉलेज मीन्स होता है
ज्ञान, एक्ट काम करना, एक्शन काम, एंटर एंट्रेंस, एडमिट एडमिशन, डाई मीन्स होता मरना और डेथ मीन्स होती मृत्यु, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, इनविटेशन मतलब होता आमंत्रण, मैरी शादी करना और मैरिज मीन्स होती है शादी, इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्मेशन होती है सूचना, इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करना और इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है अन्वेषण, लाफ मीन्स हंसना और लाफ्टर मीन्स होती है हंसी, और अरेंज अरेंज का है फिर अरेंजमेंट। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे क्रिया से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं। आई मीन टू से फॉर्मिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। सो हियर आर some examples of abstract noun. Abstract noun are used in these sentences. In sentences में इन वाक्यों में abstract noun का use हुआ है. So you can see this. I got an information about him. मुझे उसके बारे में एक सूचना, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली या महत्वपूर्ण सूचना मिली. Here is a word information is an एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पर जो वर्ड इंफॉर्मेशन आया है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा. नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट रिसीव्ड हिज इनविटेशन इवन नाउ. मुझे अभी तक उसका आमंत्रण नहीं मिला है. द वर्ड इनविटेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पर वर्ड जो है आमंत्रण नहीं मिला है. इट मीन्स ही हैज नॉट इनवाइटेड मी. तो इनवाइटेड से ये फॉर्म हुआ है एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनविटेशन मतलब होता है आमंत्रण. ही इज लुकिंग इन कंफ्यूजन. वह भ्रम में दिखाई दे रहा है. तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? कंफ्यूजन. फ्रेंडशिप इज द वून ऑफ गॉड. मित्रता भगवान का वरदान है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है. सो फ्रेंड्स, here are some example in which I have tried to explain all of you the use of abstract noun in sentences, because I have already told you abstract noun are used in sentences as object of sentence, object of verb and subject. आई मीन टू से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है या वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है. यू कैन सी दैट फ्रेंडशिप एंड ऑनेस्टी आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन बोथ ऑफ सेंटेंसेस. इन दोनों सेंटेंसेस में एज अ सब्जेक्ट ये यूज हुए हैं. एंड आफ्टर दिस आई वांट टू से सम इंपॉर्टेंट रूल. आई मीन टू से what we have discussed even now. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? repeated. okay, so what is abstract noun? Abstract noun are name, given, state, feelings, quality and action. उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा. और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, और इसके लिए प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं इट. और जेंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए होता है न्यूट्रल जेंडर. इसके लिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं और इसके लिए प्रोनाउन आएगा इट. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद ना आए, अगर यहाँ पर कोई भी आपको डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मैं अपनी पूरी तरीके से कोशिश करूंगा जो भी आपको डाउट्स हो वो आपके क्लियर किए जाएंगे. अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.